Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to explain you all the very much awaited poem of English subject grade 8th unit 4 4.1 The Wet. I shall explain you the poem line by line with all the poetic devices after the explanation such as figures of speech, rhyming scheme and so on. I shall also discuss with you the warming up exercise and you shall find the answers link in the description box like other videos. But before starting the lesson, one small thing that I always ask you all is to hit the like button, and if you are new to my channel, please do subscribe to my channel Learn with Hema and also do share it with your friends. So let's start for today. We shall start up with the warming up exercise. It's 4.1 The Wet, written by Guy Bose. Guy Bose is a London based poet and this poem is written in a very light hearted tone. Light hearted tone मतलब मजाकिया टोन. मजाकिया टोन में ये पूरी पोएम लिखी गई है और पोएम के अंदर जो है एक हमें एडवाइस दी है, इस पोएट ने स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी है कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें सिर्फ इंसानों का ही डॉक्टर बनना चाहिए, जानवरों का नहीं, क्योंकि जानवरों के डॉक्टर को कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इतने सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है और पे उनको बहुत थोड़ा सा मिलता है. तो ये पोएट स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि अगर आप वाकई में कमाना चाहते हो तो डॉक्टर बनो, लेकिन इंसानों का डॉक्टर बनो. तो बहुत ही ह्यूमरस तरीके से उन्होंने ये पोएम लिखी है और ये बताया है कि हमें वेट क्यों नहीं बनना चाहिए. तो ये जो है शुरुआत का है वार्मिंग अप एक्सरसाइज. हालांकि लिंक में आपको वार्मिंग अप एक्सरसाइज भी मिलेगी, लेकिन फिर भी एक जस्ट थोड़ा सा हम टर्न अप कर लेंगे. वेयर डू वी फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज यानी शहर. शहर में हमें सभी टाइप के वाइल्ड एनिमल्स कहाँ मिलेंगे? वेयर डू वी फाइंड देम? ऑफ कोर्स जू. जू इज द ओनली प्लेस वेयर वी गेट ऑल द वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन एरियाज. डू यू हैव अ पेट? नाउ दिस इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. I don't have a pet. Maybe you have at your home. It can be a dog, cat, any pet. How do we help animals and birds? How do we help? हम कैसे मदद कर सकते हैं animals and birds की? By treating them humanly, by feeding them, by domesticating them, by loving them, by tendering them, by taking care of them, by taking care of their shelters, by keeping out water. Like in summer seasons, we normally keep a plate of water outside our houses, balconies, so that the birds who are thirsty, they can come and drink the water. How do we realize that animals are not feeling well? हमको कैसे पता चलता है कि एनिमल्स ठीक से फील, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है? देखो, जैसे ह्यूमंस बीमार होते हैं तो ह्यूमंस की सारी एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है. हमारा चेहरा उतर जाता है, तो हमारे चेहरे से भी इंसान बता सकते हैं. लेकिन अगर चेहरा जो नहीं समझ पाता है तो हम एक्टिविटी से बता सकते हैं कि रोज़ इतना उछल कूद करने वाला बच्चा आज शांत कैसे बैठा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है. तो क्या गड़बड़ हो सकता है? तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दुख रहा है, सर्दी है, बुखार है. सो हाउ डू वी रियलाइज? इवन एनिमल्स भी जो एक्टिव रहते हैं, एनिमल्स भी पूरे टाइम उछल कूद करते रहते हैं. तो अगर कोई एनिमल का जो रेगुलर एक्टिविटी है वो अपनी वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, if the animal is not performing his regular activities, daily activities, then we can make out that the animal is sick. But many a times we are not able to find out the exact reason why they are not feeling well. Who gives medicine treatment to sick animals and birds? Now, if animals become sick, if animals get sick or birds get sick, then who will treat them? Where do we take them? If humans get sick or we don't feel well, we go to the doctors. We go to the MBBS doctors, or we go to the MD doctors, or we go to the hospitals. There are many hospitals or clinics where human beings are being treated. But if an animal gets sick, we do not take the animal to a human doctor. We take the animal or a bird to a special doctor named as the vet. The vet means the veterinarian doctor who treats animals.
So the animals doctor we can call as the vet. Now let's go for the next question. The next, doctor who do special advanced study of specific parts of the body have special terms. In your group, try to match the specialist doctors with who what they treat. जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई डॉक्टर कुछ स्पेशल डिजीज को ही ट्रीट कर पाता है या स्पेशल बॉडी पार्ट्स के लिए ही वो स्पेशलिस्ट कहा जाता है, तो उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है. जैसे अगर हमारे दांत सड़ जाते हैं तो हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास में. अगर कोई बच्चे का डॉक्टर होता है तो हम उसे पीडियाट्रिशियन के पास में लेके जाते हैं. वैसे ही हार्ट प्रॉब्लम होती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं. ब्रेन की या नसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं. तो ऐसे हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारे पास, तो हम ये मैच द कॉलम करते हैं उन डॉक्टर्स के साथ में. सो डेंटिस्ट 1 मैचेस विथ टीथ D, कार्डियोलॉजिस्ट मैचेस विथ G हार्ट, ophthalmologist matches with eye, that is F, orthopedic matches with bone, orthopedic जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, and ophthalmologist जो आंखें देखते हैं. pediatrician works with small kids, छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं. neurologist works with brain और with spine, brain और spine मतलब जो सारी नसें जहाँ हमारी जुड़ी हुई रहती है, न्यूरोलॉजिस्ट तो वो हो गया. एंड वेटेरिनेरियन इज विथ एनिमल्स एंड बर्ड्स, E 7 का E हो गया. तो ये सारे हमने यहाँ पे मैच द कॉलम कर लिए हैं. द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड व्हाट स्पेशल बॉडी पार्ट्स दे ट्रीट. तो लेट्स मूव अहेड. द वेट. ना द वेट, एक्चुअली वेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेटेरिनेरियन. ये डॉक्टर जो नाम है स्पेशलिस्ट वेटेरिनेरियन, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये यहाँ दिया हुआ है. इट इज गिवन ओवर वेटेरिनेरियन. सो बहुत ही ब्यूटीफुल ह्यूमरस पोएम लिखा है गाय बॉस ने. लेट्स स्टडी अबाउट इट. टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स इज लाइकली टू गेट possesses a different insight. तो यहाँ पे the poet is trying to say that if you want to become a successful and competent vet, competent means you should be very much capable of doing what you are into. मतलब आप जिस काम में भी हो आप सबसे ज़्यादा केपेबल होने चाहिए. कॉम्पिटेंट मतलब अगर 4 लोग खड़े हैं सेम क्वालिफिकेशन वाले, तो उनमें से सबसे ज़्यादा एबिलिटी काम करने की तुम्हारे अंदर होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट. सो टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट, अगर आपको सक्सेसफुल भी होना है और कॉम्पिटेंट होना है, यानी कि 4 डॉक्टर्स में से अकेले आप चुने जाए, ऐसा होना चाहिए, तो यू शुड नीड नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड. सो नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड. अगर आपको ऐसा सक्सेसफुल और कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनना है तो आपके पास नॉलेज जो है बहुत वाइड होनी चाहिए. एक्सीडिंगली वाइड यानी हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, वेरी मच आप बोल सकते हो. क्यों होना चाहिए ऐसा? फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स इज लाइकली टू गेट पोजेसेस अ डिफरेंट इनसाइट. क्योंकि वेट अगर आप बनते हो तो आपको जितने भी पेशेंट्स मिलेंगे उन सभी के मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उन सबका डिफरेंट इनसाइड है. अब इस डिफरेंट इनसाइड से क्या मतलब है? देखो, अगर ह्यूमन डॉक्टर बन रहे हैं हम कोई भी, तो ह्यूमन के बॉडी में जो हमारे आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, ये सभी ह्यूमंस में सेम रहेंगे, नसें सेम रहेगी, बीमारियां भी होगी तो सेम होगी. कफ है तो सबका एक ही रीज़न होगा कफ होने का, और या कुछ और रीज़न हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट आँख, नाक, कान सबका मुंह सेम है, हार्ट सबका सेम है, लंग्स, किडनी, बॉडी पार्ट्स हर इंसान में सेम है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो. दांत भी सेम रहती है. जो सारी नसें जो है एक ही काम करती है, या जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे एक ही तरह के काम करते हैं. तो ह्यूमंस के लिए तो एक ही टाइप का इनसाइड है पूरा बॉडी, लेकिन एनिमल्स के लिए हर एनिमल का इनसाइड डिफरेंट है. हर एनिमल का बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर, ये सब एनाटॉमी जो हम बोलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, ये हर एनिमल का डिफरेंट है. बिकॉज ईच ऑफ द पेशेंट इज लाइकली टू गेट पोजेसेस अ डिफरेंट इनसाइड. दैट मीन्स हर एक का बॉडी एनाटॉमी अलग अलग है. ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन. उसको पता होना चाहिए कि अगर कैट मिल्क नहीं पी रही है तो क्यों नहीं पी रही है, क्या कारण है. वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन.
अगर डॉग अपना बोन नहीं खा रहा है, हड्डी नहीं खा रहा है, तो क्यों नहीं खा रहा है, क्या कारण है, वो उसको पता होना चाहिए. Why the coat of the horse is not shining like silk and why the parrot does nothing but groan. अब वो कह रहा है कि जो हॉर्स का जो कोट है, कोट यानी जो उसके बाल होते हैं ना ऊपर से, हॉर्स के मेन जो बाल होते हैं सर पे, तो वो शाइन क्यों नहीं कर रहा है सिल्क के जैसे. नॉर्मली उसका मेन बहुत ज़्यादा शाइन करता है, कोट जो स्किन है हॉर्स की वो एकदम सिल्क के जैसा शाइन करती है, वो क्यों शाइन नहीं कर रहा है हॉर्स का कोट. वाई द पैरट डज नथिंग बट ग्रोन. और पैरट सिर्फ ग्रोन क्यों कर रहा है, सिर्फ आवाजें क्यों निकाल रहा है अलग अलग, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है. वाई द डक्स एंड द चिकन्स आर फेलिंग टू ले, वाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग्स. मतलब जो डक्स और चिकन्स है, वाई दे आर फेलिंग टू ले, यानी कि वो ले मीन्स अंडे ले करते हैं ना, दे ले एग्स, दिस हेन्स एंड चिकन्स, डक्स एंड चिकन्स दे ले एग्स. तो वाई दिस डक्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले, यानी कि वो लोग अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं. एंड वाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग्स. और ये जो कैनरी बर्ड है, कैनरी बर्ड स्पैरो टाइप, तो ये जो है कैनरी सिंगिंग बर्ड हम बोलते हैं उसको, ये कैनरी बर्ड जो है इतने हल्के हल्के कम धीमी आवाज में क्यों गा रही है. उसकी आवाज जो नॉर्मल अच्छी सी होती है, स्ट्रॉन्ग आवाज होती है, तीखी आवाज होती है, आज एकदम डल डल आवाज क्यों है उसकी, मतलब क्या हुआ उसे. तो ये सब उसे पता होना चाहिए. यानी कि ये तो सब घर के अंदर के हो गए, ठीक है. अब अगर हम बाहर आते हैं, एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स. और अगर उसको जू में बुलाया गया तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि इसको ये हुआ है, उसको वो हुआ है. सभी एनिमल्स जो अलग अलग एनिमल्स जू में होते हैं, सभी एनिमल्स की अलग अलग बीमारियां हैं, है ना. अब जैसे सर्दी खांसी का मौसम चलता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली एक ही टाइप के पेशेंट्स होते हैं, सबको सर्दी हो रही है, सबको खांसी है, सबको बुखार है, वायरल फीवर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही टाइप की डिजीज होती है. बट हम जू में जाते हैं तो एक ही जगह में, एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही वेदर में रहने वाले ये सारे एनिमल्स की सभी की डिजीजेस अलग अलग हो जाती है. सो ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स. इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं. इफ द लायंस गॉट अ कोल्ड, इफ द जीब्रास गेटिंग ओल्ड, इफ द सेंटीपीड्स हैज ट्रबल विथ हिज फीट, इफ द हिप्पोस फीलिंग इल, इफ द बाइसन्स गॉट अ चिल, इफ द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट. यानी अब देखो ये सारे जो, अगर वो जू में आएगा वेट, तो ही हैज टू नो लॉट मेनी थिंग्स एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स, यानी अनबिलीवेबल, ऐसी ऐसी बातें उनको बतानी पड़ेगी. तो क्या क्या चीजें हैं, उनको क्या क्या बताना पड़ेगा. अगर लायन को कोल्ड हुआ है तो क्यों हुआ है, यानी लायन को अगर सर्दी लगी है तो. इफ द जीब्रास गेटिंग ओल्ड, और अगर जीब्रास ओल्ड हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं. इफ द सेंटीपीड हैज ट्रबल विथ हिज फीट. सेंटीपीड एक छोटा सा लॉन्ग क्रिएचर है, एक वॉर्म जैसा, जिसके बहुत हजारों, 100,000 जितना लंबा होता है उतने पैर होते हैं. तो अगर उसका पैरों में, उसको चलने में दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है. इफ द हिप्पोज ई फीलिंग इल, और अगर हिप्पोपोटेमस को ठीक नहीं लग रहा है तो क्यों ठीक नहीं लग रहा है. इफ द बाइसन्स गॉट अ चिल, और बाइसन को जो है सर्दी लग चुकी है, क्यों, ये सब क्यों हुआ है. इफ द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम द हीट, और आर्टिक फॉक्स मतलब एक आर्टिक एरिया में रहने वाला, आर्टिक यानी नॉर्थ पोल पे जो पोलर रीजन होता है हमारा, वो आर्टिक एरिया, उसे हम आर्टिक कहते हैं. एंड एंटार्क्टिक जो साउथ पोल का होता है, यहाँ पर आर्टिक फॉक्स बोला है, यानी कि नॉर्थ पोल में जो रहने वाले फॉक्स हैं उनको यहाँ पर हीट क्यों हो रही है. तो ये सब उन्हें जानना जरूरी है. तो ये सब उसको अगर आएगा तो वो हमें चीजें बताएगा, और जो हमारी समझ के बाहर है, इसीलिए हम कहते हैं अनबिलीवेबल, दैट इज इनक्रेडिबल. तो ये सारे एनिमल्स के, जू में रहने वाले एनिमल्स के प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट, इफ सम वायरुलेंट डिजीज हैज अटैक्ड द चिंपैंजीज. अगर कोई वायरल डिजीज, वायरुलेंट मीन्स सम वायरस डिजीज जो किसी वायरस से होती है, अगर किसी चिंपैंजी को कोई वायरल डिजीज लग गई है तो. इफ द टॉर्टोइस हैजंट स्टिर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. अगर टॉर्टोइस जो है कई सालों से हिला ही ना हो, मूव ही नहीं हुआ हो, क्यों नहीं मूव हुआ हो. इफ द बेयर्स टू फुल ऑफ बंस, और भालू ने, बेर यानी भालू,
भालू ने बहुत सारे बंस खा लिया है, इसीलिए वो सुस्ता गया है, उसका पेट फूल गया है। तो क्यों? इफ द कोबरा ईट्स हर सन्स, और कोबरा जो है उसने अपने ही बच्चों को खा लिया, तो क्यों? इफ द पैंथर हैज अ वाइफ हु च्यूज हिज ईयर्स, और पैंथर जो स्पॉटेड टाइगर जैसा दिखता है लेकिन स्पॉट रहते हैं उसके बॉडी पे, उसे हम पैंथर कहते हैं। एंड इफ द पैंथर हैज अ वाइफ हु च्यूज हिज ईयर्स, और पैंथर की जो वाइफ है वो उसी के कान खा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब जानवर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब पूछ रहे हैं हम उनसे। नेक्स्ट जो स्टेंजा है हमारा, इफ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ। टिफ मीन्स क्वारल, झगड़ा। अगर 2-3 जिराफ जो है आपस में घास खाने के लिए ऊपर जब वो लोग अपना गर्दन करते हैं तो हो सकता है आपस में टकरा गए हो। तो आपस में टकराने की वजह से, यानी क्वारल होने की वजह से, झगड़ा होने की वजह से उनके नेक्स जो है या तो ट्विस्ट हो गए या तो स्टिफ हो गए हैं। तो यहाँ पर बताया है फीलिंग स्टिफ, तो उनके नेक्स जो है इस झगड़े के कारण स्टिफ हो गए हैं, कड़क हो गए हैं। सो ऐसा क्यों हुआ है उनके साथ? एंड इफ हाइनास विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक्स, और हाइना को कहा गया है कि वो कीपर के जोक पे नहीं हंस रही है, यानी हाइना के साउंड को लाफिंग साउंड के जैसा माना जा रहा है कि वो हंसती हुई आवाज निकलती है उनकी जैसे, ऐसे लगता है। सो इफ द मंकी पिंच्ड हिज टेल, और अगर मंकी ने अपनी ही पूंछ को चिमटी ली है तो क्यों? एंड इफ द राइनोज लुकिंग पेल, और राइनोसेरस जो है वो थोड़ा पेल दिख रहा है, वो ऐसा सब क्यों हो रहा है? तो ये सब उसको आना चाहिए, पता होना चाहिए एक वेटेरिनेरियन डॉक्टर को। इफ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चोक्स, अब एलिफेंट जो है अगर पेपर बैग्स खा ले और उसका गला जो है चोक हो जाए यानी कोई चीज अटक जाती है ना गले में तो हमें खांसी आती है, उस तरीके से। इफ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चोक्स, इफ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प, और कैमल का हम्प जो है, हमें पता है कैमल का हम्प क्या होता है, उसकी पीठ पे जो उठा हुआ भाग थोड़ा सा, वो हम्प कहते हैं उसे। तो अगर उसके हम्प को हर्ट हुआ है तो अब हम क्या करेंगे? इफ द कैंगरू वोंट जंप, कैंगरूज नॉर्मली जंप करते हैं, उनको वॉकिंग नहीं आती है, वो चलते भी हैं तो जंप करके चलते हैं, तो कैंगरूज जंप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? कैंगरू एक ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है, जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड भी माना जाता है, और कैंगरू इसको हॉपिंग बर्ड भी कहते हैं। कैंगरू के पेट में एक बैग जैसा बना हुआ होता है जहां पर मदर कैंगरू जो है अपने बच्चों को लेकर हॉप करती है। सो सभी एनिमल्स जो है यूनिक है अपने अपने स्टाइल में, सभी की अलग अलग यूनिकनेस है। इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, क्रोकोडाइल जो है वन हु ईट्स फ्लैश, तो अगर क्रोकोडाइल जो है वो कैनिबल हो जाए, जो अगर फ्लैश खाने वाला हो जाए अचानक से, जो कि फ्लैश नहीं खा रहा हो, वैसे तो क्रोकोडाइल फ्लैश खाता है लेकिन यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है ना, इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल, यानी अभी तक वो कैनिबल नहीं था, अब अगर वो कैनिबल हो जाए और बाइट करे किसी को तो दे रन अवे एंड गेट दैट ओमनीसाइंट द वेट। तो अगर ये सारे अभी तक हमने जो भी ऊपर से लेके नीचे तक जो भी एनिमल्स के डिजीज देखे ना, कौन कौन क्या क्या सफ़र कर रहा है, कौन सा एनिमल क्या सफ़र कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी उनको पाया जाता है, जू कीपर्स को इन एनिमल्स के बीमारी ऐसी कुछ भी पाई जाती है, तो वो भागते हैं और किसे बुलाते हैं जाके? दैट ओमनीसाइंट द वेट। ओमनीसाइंट मीन्स जिसे सब जानकारी होती है, द वन हु नोज एवरीथिंग, ऑल एंड एवरीथिंग यहाँ मेंशन्ड है, वन हु नोज ऑल एंड एवरीथिंग, एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट्स, और हम उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी चीज़ें सही सही कर दे। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें, अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये होप रहती है कि डॉक्टर हमें जो भी मेडिसिन देंगे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब एनिमल्स बीमार होते हैं तो वो जू कीपर्स जो है वेट के पास भागते हैं, ये सोच के कि वेट जो है सब ठीक कर देगा। प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे। तो प्रोफाउंडली मीन्स यहाँ पे डीपली कहा गया है या ग्रेटली, यानी कि पूरा जोर देकर मैं वेट के ऊपर पिटी करता हूँ, दया करता हूँ कि बेचारा हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, इतने से पे के लिए उसे कितना सारा पढ़ना पड़ता है, तो
तो मुझे दया आती है वेट पे कि एक तो उनको इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ऊपर से उनको ज़्यादा पेमेंट भी नहीं मिलती है उनके काम की. सो माई सन, आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एंड ईजियर वे. तो यहाँ पे ये जो पोएट है गाय बोस, ये हम सभी को कह रहे हैं माई सन, या अपने बच्चे को ये एडवाइस दे रहा है कि आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एंड ईजियर वे. तो मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, आसान तरीके से कमाना है डॉक्टर बन के, तो आप वेट मत बनो, क्योंकि वेट बनोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा. लेकिन अगर ह्यूमन डॉक्टर बने तो थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा और वो इजी भी है. और ह्यूमन डॉक्टर्स अगर बनोगे आप तो आप अच्छे खासे तरीके से कमा भी पाओगे एंड ईजियर वे. डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड. जूलॉजिकल क्राउड को अटेंड मत करो, क्योंकि जूलॉजिकल क्राउड तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम्हें कोई कमाई नहीं देगी किसी भी तरीके से. और उस क्राउड को अटेंड करना मतलब इतना सारा पढ़ना. जूलॉजिकल क्राउड इज द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स इन द जू. अ फार मोर एडवाइजेबल प्लान. तो आप जूलॉजिकल क्राउड को अटेंड करने का तो बिल्कुल कोशिश ही मत करना, कि ये मत सोचना कि मैं जू में क्राउड को अटेंड करूंगा. बट इससे भी बहुत अच्छा एडवाइस है, मेरा एक प्लान है, इज टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर. कि तुम अपने आप को डॉक्टर कहलाओ, लेकिन जानवरों का डॉक्टर नहीं, वेट नहीं. एंड सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन. बनो तो किसके डॉक्टर बनो? ह्यूमन के, मैन के, राइट. तो ये जो है हमने बच्चों पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ले लिया है. अब मैं वापस से ऊपर जाती हूँ एंड वी शैल नाउ स्टडी द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा. हम राइमिंग स्कीम करेंगे हर स्टैंजा की, और उसके साथ ही अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच है किसी में तो हम वो स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट स्टैंजा हम ले लेते हैं. टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड. यहाँ पे देखो वेट गेट, ये हमारा ए हो गया, एंड वाइड इनसाइड. 4 लाइन्स का ये स्टैंजा है फर्स्ट स्टैंजा. तो ए बी हमारा राइमिंग स्कीम हो गया है. नेक्स्ट स्टैंजा. ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन. मिल्क एंड सिल्क, देखो थर्ड लाइन है, वाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क. तो मिल्क एंड सिल्क राइम कर रहे हैं, एंड बोन एंड ग्रोन राइम कर रहा है. सो वी हैव ए बी अगेन. तो सेकेंड स्टैंजा में भी हमारा ए बी है राइमिंग स्कीम. इसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं. एक फिगर ऑफ स्पीच है नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड, ये हो गया इन्वर्शन हमारा. वाई? बिकॉज the correct order of the sentence should be needs exceedingly wide knowledge. Okay, the words are not in the proper prose order, therefore it is inversion. फिर दूसरा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो why the coat of a horse is not shining like silk. This is simile because the coat of the horse is compared to the silk. Why the parrot does nothing but groan. This is your onomatopoeia. Onomatopoeia means here the word groan is a sound word. So sound word is used in the sentence and therefore it is onomatopoeia. So first 2 stanzas we completed. Now third stanza if we talk about why the ducks and the chickens are failing to lay. So lay and say they match with each other. So A and sings things. So A B, right? B and D, the second and the fourth line matches. So we give them B, and the first and third line matches. So we give them A. So A B is our rhyming scheme. So if the lions caught a cold, so zebra is getting old. So cold and old are matching, rhyming. So A, then feet and heat over here, right? Ill, chill. So A B C B. So the fourth stanza is of 6 lines. 1 2 3 4 5 6. The fourth stanza is of 6 lines and the rhyming scheme is A B C B, like that. The next is if some virulent disease has attacked the chimpanzees. So disease and chimpanzees, they'll match. Ears, buns and sons will match and ears will match with ears. So A B C B.
So here also we have 6 lines, A, A, B, C, C, B. This is the rhyming scheme. No figure of speech in this stanza. So this is the 6th stanza. If giraffes have had a tiff and stiff, this rhymes. Jokes doesn't rhyme with anyone. Tail and pale. So there is 5 line. You don't have a uniform stanza pattern in this poem. See, in the first 3 stanzas we had 4 lines. Then 4th and 5th stanza we had 6 lines. Now here this is 6th stanza, and here we have 5 lines with the rhyming scheme of A, B, C, C. Pale and tail matches. So A, B, C, C. So this is the rhyming schemes. If the hyenas will not laugh at keeper's jokes, this can be taken as personification, because the hyenas are said to be laughing like humans. So now next stanza, 7th stanza. If the elephant eats paper bags and chokes. So chokes doesn't matches. Hump, jump. So A, B, B, C, D, D. So A, B, B, C, D, D. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lines. And right, 7 lines. This stanza is 7 lines. So chokes doesn't rhymes with anything. So A, B, B, C, D, D, C. So 7 lines we have in this stanza, 7th stanza. And here the figure of speech. No, we don't have any figure of speech over here. If you want, you can take this one. If the elephant eats paper bags and chokes. So elephant and eats. Here you can take it as alliteration. If the camel hurts his hump, so hurts his hump. Here you can take this as also alliteration, because the sound of letter H is repeated. Now coming to the 8th stanza. Last word is learn and pay. So A, B, earn, learn, earn. So it will get A, B, A, B, again pay and bay rhymes. So B, B, A, B, A, B, crowd will become C, plan will become D, aloud again C, and man D. So A, B, C, D, C, D. So this is the rhyming scheme of the 8th stanza, A, B, C, D, C, D. So with this we complete our poem with all the explanation as well as the rhyming scheme and the poetic devices, that is figures of speech. All the margin questions as well as the workshop, we can English workshop, we shall be doing it in the you can find the link in the description box. So that's all for today, for now, for this lesson. We'll soon meet in the other lesson. Till then, stay safe, stay secure. Thank you.